So hello everyone, Jai Hind. My name is Akash Kumar Sahani and today we are going to revise electricity of class 10th. So your exam will be on 20 Feb and for that we are revising this chapter electricity. So we will revise the whole chapter through some questions and numericals so that you can also understood how to write the answer in the examination, right? So we will not waste our much time and we will start. So the let come on the screen. The first question is define electric current. So what is electric current? Electric current, right? So electric current is nothing but the flow of charge. So flow of charges is known as electric current. Now, instead of charges, if you will write electron, so that will be not appropriate. That will be not considered wrong, but not appropriate. Because charges are flowing, then only there is a production of the electric current. Because positive charge से भी current produce होता है, negative charge से भी current produce होता है. And electron is only negative charged. So if you are saying that flow of only electron is known as current, so that will be not appropriate. So you have to write down the flow of charge is known as current. I hope you have understood. Now, next is give mathematical relationship between the current, the electric charge, time. Time means you have to give the formula. So if I is the current, Q is the charge, and T is the time, then I will be equals to Q upon time. So this is the mathematical form. Student, always write the symbolic meanings. Means if you are writing I, so what does it mean of I? So I means current. What is the meaning of Q? What is the meaning of Q? Q means charge. And what is the meaning of T? T is time. Now, there is one question. The filament of electric lamp which draws a current of 0.2 ampere means करंट की वैल्यू दी हुई है कितना 0.2 एम्पियर, राइट? सो यू हैव टू राइट डाउन गिवन फर्स्ट कि गिवन क्या क्या है इसके अंदर. सो आई इज गिवन यूज फॉर 5 hours. So 5 hours means time is given. Time is 5 hour. Now what we have to calculate the amount of charge flowing through the circuit means Q you have to calculate. तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे टू कैलकुलेट. टू कैलकुलेट लिखेंगे Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट? ना अब हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है इसके अंदर, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, लिखेंगे फॉर्मूला. क्योंकि बेटा आपको एग्जाम में यू विल गेट द मार्क्स ऑन द स्टेप्स ऑल्सो. तो ऐसे स्टेप्स लिख लोगे तो अगर आपका लास्ट में आंसर रॉन्ग भी आ रहा है सो यू विल गेट द मार्क्स ऑफ द स्टेप्स. So you are going to use this formula I is equals to Q upon T. Now you will write solution. What is the solution of this? I is given. I is 5R. Always remember that you have to convert the all units in SI units. So R is not the unit SI unit of time. So you have to convert into SI unit. What is the SI unit of time? That is second. So in 1 hour there is 60 minutes and in 1 minute there is 60 seconds. So like this you have to convert this. So this will be 5 6 are 30, 30 and 6 are 180 and 20 will become here. So I is given how much 0.2. First of all write the formula again. I is given 0.2 is equals to Q divided by T, that is 1800. So Q will be equals to 0.2 into, क्योंकि ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2 into 18,000.
सो दिस विल बी इक्वल्स टू, एक जीरो से एक पॉइंट हम यहाँ से हटा देंगे तो 2, 18 टू ज़ा 36 और 2 जीरो आ जाएगा। नाउ अगर आप लास्ट में यूनिट नहीं लिखते हो देन ऑल्सो यू विल लूज योर मार्क्स। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? दैट इज कूलम, C। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यू हैव टू इनबॉक्स दिस, राइट। और लास्ट में आपको आंसर लिखना होगा इस तरीके से। आंसर क्या पूछा था क्वेश्चन में? पूछा था द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, तो यहाँ पे लिखोगे द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, ठीक है। कितना आया है? 3600 कूलम। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। So this is the whole answer of this 5 marks question which is came in 2015 and 16, right? So likewise you have to attempt the question. Let's move to the second question. Second question is asking that what is meant by electric circuit? So electric circuit क्या होता है बच्चों? The closed path of electrical appliances such as resistors, bulb, wires, switches, etc. Right? So this is how you have to write the answer. Again, in the question it is asking what is done in order to have continuous flow of electric charge from a point A to another point B in a electrical circuit. So you have to attach the battery, right? तो बैटरी क्या करता है? आपको कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज प्रोवाइड करता रहता है। इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी, right? Now write the relation between coulomb and ampere. कूलम और एम्पियर में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो आपने अभी पढ़ा कि I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। नाउ Q का यूनिट होता है कूलम और I का यूनिट होता है एम्पियर। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कूलम एंड एम्पियर, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन 1 वोल्ट। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। डिफाइन 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 ओम, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस को आपको सिंपली फॉर्मूला लिखिए एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला राइट द आंसर। फॉर एग्जांपल वोल्ट। सो वोल्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट? सो अगर ये 1 वोल्ट कब हो जाएगा? दिस विल बी 1 वोल्ट व्हेन the work done is 1 joule and charge is 1 coulomb. अब इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। When 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb through one point to another point, it is known as 1 volt, right? Now next question is express it in terms of SI unit of work and charge. So SI unit of work क्या हो गया? जूल, एंड चार्ज का ऐसा यूनिट क्या हो गया? कूलम। तो इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। पहले आपको डिफाइन करना है, स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद में इस तरीके से फॉर्मूला लिख देना है आपको। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन कैरिंग अ चार्ज। अब देखो न्यूमेरिकल है तो फिर से हम लोग वही फॉर्मेट, गिवन टू कैलकुलेट फॉर्मूला और उसके बाद में सॉल्यूशन, इस फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब क्या बोला यहाँ पे? क्या क्या गिवन है? तो 1 कूलम, और कूलम किसकी यूनिट होती है? चार्ज की। तो Q बराबर हो जाएगा 1C थ्रू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट, यानी वोल्ट यानी आपका क्या दिया हुआ है? V
विच इज इक्वल टू 3 वोल्ट। और आपसे क्या पूछा हुआ है, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम मतलब W, राइट। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब देखो W क्या है, Q क्या है, V क्या है, इसको यहाँ पे बगल में यहाँ कहीं साइड में लिखना होगा आपको। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, W इज सॉरी, W इज वर्क डन, Q इज चार्ज, राइट। अब फॉर्मूले में इसको बस सब्स्टिट्यूट कर दो। Q दिया, V दिया हुआ है आपको 3 वोल्ट इज इक्वल टू W आपको कैलकुलेट करना है, Q दिया हुआ है कितना 1 कूलम, तो यहाँ पे 1 कूलम, तो W बराबर कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 दैट इज 3, और यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, इसको इनबॉक्स कर दोगे आप, राइट। और लास्ट में आप क्या लिखोगे, आंसर। आंसर क्या है हो जाएगा आपका, क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड is 3 joule, right? I hope you have understood. Let's move to the next question. Now, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा था आपसे, थ्योरी है। अ बल्ब कैन नॉट बी यूज इन द प्लेस ऑफ रजिस्टर टू वेरीफाई ओम्स लॉ। अगर आप क्लास 10th में है, सो आई होप यू हैव ऑल डन द प्रैक्टिकल ऑफ ओम्स लॉ। उसमें अगर आप देखोगे, वी हैव यूज्ड अ रजिस्टर, सो कैन on the place of register can we use bulb here? So answer is no. Why? Because bulb जब आप ऑन करोगे its temperature will increase, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है so Ohm's law is not valid for the increased temperature, है ना। स्टेटमेंट में ही है उसके Ohm's law के, क्या है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज the potential difference is directly proportional to the current flowing through the circuit provided that all the physical things remain constant like temperature, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बल्ब नहीं यूज कर सकते, क्यों नहीं यूज कर सकते, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट हो के लिए ही हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक नंबर में आ सकता है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। इतना लिखने के बाद आप फॉर्मूला लिख देना, R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। इतना लिख दोगे, यू विल गेट इजीली 1 मार्क्स। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एंड स्टेट द लॉ that gives relationship between the potential difference across two ends of a conductor, right? अगर एक कंडक्टर है आपका, तो इनके बीच में अगर करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, और इनके बीच में पोटेंशियल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक वो V है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है वो पूछा है आपसे, राइट। सो आपको पता है ये फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू I इंटू R, इसके ऊपर लिख देना V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हो गया। रिप्रेजेंट इट ओम्स लॉ मैथमेटिकली, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया ओम्स लॉ का। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो एक आप क्या बना दो, एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बना दो, इसके अक्रॉस क्या लगा देना, वोल्ट मीटर लगा देना। वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज वेरी हाई, ठीक है। यहाँ पे एमीटर लगा देंगे, एमीटर सीरीज में लगाते हैं, और अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है इज वेरी लो। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये चीजें याद रखो, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, राइट, और अमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपकी बैटरी, यहाँ पे हो जाएगा स्विच, और ये आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। स्विच को हम लोग K से दिखाते हैं, इसको V से दिखाते हैं, रेजिस्टेंस को R से दिखाते हैं। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई द ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंशन एनी टू फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड्स। तो देखो सिलेंड्रिकल कंडक्टर अगर है
तो इसमें अगर फ्लो ऑफ करंट है तो किस पे डिपेंड करता है, सॉरी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो बेटा अगर इसकी लेंथ L है सो इट विल डिपेंड्स अपॉन द लेंथ। अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज A, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और मटेरियल के नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाता है, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, लेंथ मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, राइट। अच्छा, इसी पे एक क्वेश्चन और आता है, इफ यू हैव टू वायर्स ऑफ कॉपर, एक 1 किलोमीटर का है और एक 1 सेंटीमीटर का है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, दो वायर है, एक 1 सेंटीमीटर का है और एक 1 किलोमीटर का है, राइट, और दोनों किसका है, कॉपर का है, तो रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, 1 सेंटीमीटर की या 1 किलोमीटर की। और बच्चे लिख के आते हैं 1 किलोमीटर और बोलते हैं सर 1 मार्क्स तो कंफर्म है, और यही गलती करते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। दिस इज कॉपर, दिस इज ऑल्सो कॉपर, सो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम ऑफ बोथ द वायर। आप उसे खींचो, मरोड़ो, कुछ भी करो, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, राइट। सो रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है आपका, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको गलती करके मत आना आप लोग। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस। देखो फिर से 1 ओम आ गया है ना, फिर से हम लोग फॉर्मूले के बेसिस पे इसको डिफाइन करेंगे। R इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है ना। अभी देखो इसको ऐसे भी आ सकते हो, V इज इक्वल टू आई इंटू आर ना, वी आर इंडियंस, ऐसे याद करो, वी आर इंडियंस इस फॉर्मूले में, है ना। काफी बच्चे भूल जाते हैं, सो फॉर दिस इज निमोनिक्स टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। So R is equals to, from here R is equals to V upon I. So R is 1 ohm when potential difference is 1 volt and current is 1 ampere, right? So the resistance of the wire is said to be 1 ohm when the potential difference applied is 1 volt and the current flowing through the circuit is 1 ampere. Now one question is there, a student has a resistance of wire of 1 ohm. So again you have to stick to the format given to calculate formula and solution, right। given क्या क्या है, तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम, देखो यहाँ पे, राइट। ऑफ लेंथ ऑफ वायर 50 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वायर इज गिवन 50 सेंटीमीटर। अब लेंथ की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, so you have to convert into meter by dividing by 100, so it will come 0.5 meter. What length he should stretch it uniformly? यूनिफॉर्मली का मतलब यहाँ पे बोला है बच्चों कि एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, एरिया शुड रिमेन कांस्टेंट। यानी जो स्ट्रेच वायर है, जब हम लोग खींचते हैं कोई चीज तो एक्चुअली में क्या होता है, उसका एरिया कम होता है, लेकिन यहाँ पे उसने कंडीशन दिया है कि यूनिफॉर्मली होना चाहिए, यानी एरिया जो है उसका कम नहीं होना चाहिए, यानी कम नहीं या ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। सो एज टू ऑब्टेन द वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, तो जिससे आपका नेक्स्ट वायर जो है उसको हम लोग मान लेते हैं R डैश, वो कितना हो जाए, 4 ओम हो जाए। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट करना हम लोग को, तो हम लोग कैलकुलेट करना है लेंथ। ठीक है, जो नई वाली लेंथ होगी वो कैलकुलेट करना है ना। आपको पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, राइट। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे R अपॉन R डैश इज इक्वल्स टू L अपॉन L डैश, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब बाकी चीजें कांस्टेंट रखनी है, सो दैट विल बी कैंसल आउट, तो सिर्फ आपका लेंथ बचेगा ही, राइट। अब यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है, L डैश कैलकुलेट करना है, तो L डैश को हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। सो R अपॉन R डैश विल बी इज इक्वल्स टू
सॉरी, वेट अ सेकेंड। तो यहाँ से एल डैश हो जाएगा आपका, एल डैश इसको यहाँ पे लेते हो और ये सबको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका आर डैश अपॉन आर इंटू एल। ठीक है, आर डैश है 4, आर की वैल्यू है 1 और एल की वैल्यू है 0.5। अब 4 का हाफ कितना होता है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब हाफ करना है, यानी 2 हो जाएगा, यानी 2 मीटर। सो अगर आपको रेजिस्टेंस कितना करना है, 4 ओम करना है, तो लेंथ कितना करना पड़ेगा, 2 मीटर कर देना पड़ेगा, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजिस्टेंस पर मीटर लेंथ ऑफ द वायर इज 10 ओम, 10 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, आई थिंक द क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीटेड, इसको छोड़ देते हैं, अभी बाकी का दूसरा करते हैं। अब आ जाता है बच्चों, जो सर्किट डायग्राम्स होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व द सर्किट डायग्राम्स, राइट। यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे कि इफ करंट इज सेम, तो अगर यहाँ से करंट आई आ रहा है, सो इट विल हैव टू मूव फ्रॉम दिस साइड। तो इन दोनों ब्रांचेस में करंट सेम है, दैट मीन्स ये दोनों कैसे हो जाएंगे, आपके सीरीज में हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखोगे द 3 ohm 3 ohm, वेट अ सेकेंड, इसको आपको लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, देखो इसको रीड्रॉ करोगे, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये आपका 3 है, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे, तो इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, आर एस। ठीक है, तो आर एस बराबर क्या हो जाएगा, आर एस इज इक्वल्स टू 3 + 3, दैट मीन्स 6 ओम, राइट। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 ओम आ गई। नाउ दीज टू रेजिस्टर्स आर विल बी कंसिडर्ड इन पैरेलल, बिकॉज जब यहाँ से करंट जाएगा, सो दैट करंट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और करंट अगर डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स द रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/3 + 1/6। एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा, 2 + 1 3/6। अब बच्चे सोचते कि यही आंसर है, बट यू हैव टू रेसिप्रोकेट दिस, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट आरपी। तो जब इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो इसको भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, तो इट विल बी 6/3, दैट इज इक्वल्स टू 2 ओम। ठीक है, अच्छा, अगर दो रेजिस्टेंस है यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूँ एक चीज, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, R1 एंड R2, तो उनके लिए डायरेक्ट आरपी का फॉर्मूला होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। ठीक है, जैसे ये दोनों आपके सॉरी ये 3 और इन दोनों का जो आया था आपका 6, ये दोनों पैरेलल में थे, तो 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6, तो ये आपका आरपी आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 18/9। देखो इससे भी आंसर कितना आ रहा है, 2 ओम ही आ रहा है आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर इधर 4 ohm एंड 4 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 ohm एंड 4 ohm आर connected in series, right? So RS is equals to 4 + 4, that means 8 ohm। ठीक है, यानी अगर हम लोग रीड्रॉ करेंगे सर्किट को, so it will look like this। ठीक है, तो ये हम लोग ने सॉल्व कर लिया, ये 8 ये 8, ये आपका पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। नाउ दीज टू रेजिस्टेंस आर इन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आरपी का भी डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, you can use that formula also, 8 × 8 divided by 8 + 8,
तो 8 2 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 हो। ठीक है। हाँ, यहाँ से एक फॉर्मूला याद रखो बच्चों कि अगर आपके n रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, ऐसे n रजिस्टर्स आपके पैरेलल में कनेक्टेड है और सबकी वैल्यू r है, तो rp का फॉर्मूला क्या होता है, r अपॉन n। n क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर। जैसे यहाँ पे r की वैल्यू क्या है 8 और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं 1 and 2, तो यहाँ पे 2, तो इसका आंसर कितना है, डायरेक्ट 4 आ जाएगा आपका। राइट, तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, rp इज इक्वल्स टू r अपॉन n, और अगर सीरीज में होता है तो n इंटू r होता है। ठीक है, आई होप कि इतना क्लियर होगा आपको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाई डू वी यूज कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ करंट। अगर आपने देखा होगा आपके घरों में जो वायर यूज होता है वो कॉपर का यूज होता है, और जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज होता है वो आपका एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, तो क्यों हम लोग यही वायर यूज करते हैं, बाकी वायर्स क्यों नहीं यूज कर सकते। तो इसका आंसर है क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है, एंड दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। राइट, सिल्वर के बाद सबसे ज्यादा कंडक्टर जो होता है वो होता है कॉपर, और उसके बाद एल्युमिनियम। सबसे ज्यादा जो कंडक्टर होता है वो सिल्वर होता है, उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है आपकी। राइट, अच्छा, एक यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, ये देख लो कि टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट। क्यों यूज करते हैं भाई, तो व्हाई वी यूज, बिकॉज टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, लगभग उसका 2500 डिग्री सेल्सियस इतना उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए इसे यूज करते हैं। टंगस्टन हैज हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से क्या होता है, उसमें हीट जनरेट हो सकता है, अकॉर्डिंग टू विच लॉ, यस, जूल्स लॉ। Sorry. So I hope you have understood this. Chalo, next. So this is the end of the topic. So I hope you have understood this, and I have covered all the things in this chapter. Even if you have any doubt, you can ask me on my personal WhatsApp number 9598936218. Right? Anytime you can ask, you just drop your screenshot or of your question, and I will definitely provide you the solution. अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो शाम को आएगा, इन द इवनिंग आई विल गिव यू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, and tomorrow I will give you the light and human eye in colorful world. So I hope the session was fruitful for you, and at the last I will say all the best for your examination, and just relax. Whatever you have studied in the past, just revise that thing only. Do not try to do the hard questions, just solve the previous year questions only. Understood? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से यू विल गेट द आइडिया हाउ द क्वेश्चन पेपर इज गोइंग टू बी कम। ज्यादा हार्ड नहीं आता है, जस्ट रिवाइज द टॉपिक्स जो भी आपने अभी तक पढ़ा है। नई चीज करने की जरूरत नहीं है, वो चीजें मत करो जिसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है ना, नहीं तो दिस विल डिस्टर्ब योर माइंड, और फिर बाद में जो आपका आने वाला है, जो आपको आ रहा है, वो भी आप भूल जाओगे। राइट, so I hope you have understood this. So with this word I will close this session. Jai Hind.